आजकल जो फ़ोन सबके हाथ में है, देखिए कि हमारे पंजाब के बहुत से शहरों में पानी की बहुत किल्लत आ गई है। कई शहर तो ऐसे हैं जहाँ पे लोग कीचड़ से निकाल-निकाल के पानी पी रहे हैं। आरओ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 70% ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एल्यूमीनियम उस टाइम पे आया था कि एक स्लो पॉइज़न है, जो कि कैदियों को दिया जाता था, लेकिन ड्यूरेबल मटीरियल होने की वजह से हमारे किचन्स में कुकर्स की फॉर्म में, पतीलों की, कढ़ाइयों की फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा एंटर कर चुका है और सबसे ज़्यादा गैस पे वही रहता है। और वो धीरे-धीरे हमारी बॉडीज़ में जाके बहुत नुकसान कर रहा है, नॉन स्टिक की। तो ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ें हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैम ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? कॉर्पोरेशन का पानी लेकर के ना मॉर्निंग में या रात में अपना मटका भर देती हूँ, तो पानी अल्कलाइन हो जाता है ना। हमारी बॉडी में, पेट में एसिड्स होते हैं और हमारे लिए अल्कलाइन जो वाटर है ना, वो उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो अभी जो आरओ का सिस्टम है ना, उससे वो सब मिनरल्स, वो अल्कलाइनिटी पानी की खत्म हो गई है। टॉपिक रखा है वातावरण प्रेमी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने वातावरण के प्रति, और वो किसी के लिए नहीं, अपने खुद के लिए होना पड़ेगा। यदि हम नहीं होंगे तो आपने देखा ही है, इस बार सर्दियाँ भी नहीं पड़ी, गर्मियाँ बहुत स्कॉचिंग रही। अभी जो मीठा मौसम होता है उसमें गर्मियों ने अपना पैर बहुत ज़्यादा पसार दिया है। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 40 ਤੋਂ 42 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। मेरा नाम खुशबू तायल है जी, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ और मैं एक एनजीओ से भी संबंधित हूँ। वैसे 4-5 साल पहले ही ऐसे ही एक बार कोरोना के बाद ऐसे हुआ कि अपने अंदर की वो एक स्त्री जो कि चाहती है कि कुछ समाज का हो, तो पौधे लेके वैसे निकले थे डिवाइडर पे, तो संस्था के कुछ जो थे सदस्य उनसे मिलना हुआ, तो फिर हमने एनजीओ ज्वाइन कर लिया। लेकिन एज अ होम मेकर, एज अ सिटीज़न हमेशा ही ये रहा है कि पर्यावरण जो है वो उसके और ध्यान होना चाहिए, तो उस और था एक रुझान। तो जैसे हमारी सोच होती है वैसे लोग मिल ही जाते हैं फिर हमें। मैम ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर वैसे आरओ का पानी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन वही है कि जब पहले इस चीज़ की समझ नहीं थी और घर में आरओ सिस्टम लग चुके थे, तो मैंने ऐसे अपने अंडर सिंक मेरा लगा हुआ है, तो मैंने इधर बाल्टी का अरेंजमेंट किया हुआ है कि जिसकी वजह से मैं पानी अपना इसमें निकाल लेती हूँ और फिर वो पानी हम पौधों में दे देते हैं या पोछे वगैरह के पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। आरओ का पानी वैसे हमें पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन पहले जब हमें समझ नहीं थी तो हम सब ने आरओ लगवा लिए थे। इसमें 1 ग्लास के पीछे 3 ग्लास पानी वेस्ट होता है। ये देखिए ये वेस्ट पानी है। कई बार हम लोग इसको नीचे ही करवा देते हैं कि ये पानी सारा फिर ड्रेन्स में जाता है, लेकिन ये पानी साफ़ होता है। आप इस पानी को प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पौधों में देने के लिए,
और पोछे झाड़ू के लिए और बहुत से कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए जैसे आजकल बोला जाता है, ये मेरा गीले वाला कचरे का डस्टबिन है। इसको भरने में 5-6 दिन लग जाते हैं। मेरा एक ही पॉलिथीन इसमें यूज़ हो जाता है। ये हम सूखे कचरे के लिए रखते हैं और इसको भी पॉलिथीन को मैं बार बार खाली करके रीयूज़ करती हूँ। ये जो है ये फ्रेश जो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होता है ना कोई भी वेस्ट, तो वो हम इसमें नहीं डालते हैं, ये हम गाय को डाल देते हैं। और छोटी छोटी कोशिशें जैसे हमने स्कूल में सीखा है, शॉवर्स नहीं यूज़ करना, पानी हमेशा बाल्टी में यूज़ करते हैं, ब्रशिंग के टाइम टैप जो है कभी भी नहीं चलाते हैं, जब भी फ्लश यूज़ करते हैं तो स्मॉल प्रेसिंग करते हैं कि ताकि बहुत ज़्यादा पानी की वेस्टेज ना हो। और बाहर भी पाइप्स को छुपा के रखा हुआ है, किसी भी गाड़ी साफ़ करने वाले के लिए स्पेशल रिकमेंडेशन होती है कि पाइप से नहीं वॉश करनी है गाड़ी, बाल्टी से ही वॉश करें। और आते जाते भी, क्योंकि अब थोड़े एनजीओ से भी जुड़े हैं और ज़्यादा इस चीज़ के लिए है, तो जहाँ ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारी सुन लेगा तो ज़रूर एक बार कह के निकलते हैं कि प्लीज़ आप ਪਾਈਪਸ ਵਗੈਰਾ को मत यूज़ कीजिए। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਰਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 70% ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੇਸਟ इस तरह करी जाते हैं। उन्होंने लोगों को की कहना चाहोगे? सर सबसे बड़ी यही चीज़ है कि अवेयरनेस नहीं है हमें कि अब पर जो समय की परिस्थितियों की जो डिमांड है ना, हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने वातावरण के प्रति, और वो किसी के लिए नहीं, अपने खुद के लिए होना पड़ेगा। यदि हम नहीं होंगे तो आपने देखा ही है, इस बार सर्दियाँ भी नहीं पड़ी, गर्मियाँ बहुत स्कॉर्चिंग रही। अभी जो मीठा मौसम होता है उसमें गर्मियों ने अपना पैर बहुत ज़्यादा पसार लिया है, तो हमें दस्तक है ये सब। और अगर अगर अभी भी हम लोग नहीं जगे तो फिर ये बहुत मुश्किल की परिस्थितियाँ आ जाएंगी। तो सभी को, कोई नए घर बना रहे हैं तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम ज़रूर रखें अपने घरों में। और सरकारों से भी मैं यही करूँगी कि ये सब चीज़ों को सिर्फ मैप्स के उस पर नहीं, बल्कि मुद्दई तौर पे इनकी जो है होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि इन पे प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए। हमारे जो सड़कों के जो फुटपाथ छोड़े हुए हैं वहाँ पे हमें ये होना चाहिए कि वो कच्ची जगह रखी जाए, वहाँ पे पौधे लगाए जाएं, है ना। मतलब छोटी छोटी अवेयरनेस जो है उसमें बहुत सारे, क्योंकि एक्चुअली हम पर्यावरण प्रेमी हैं तो हमारे दिमाग इन्हीं चीज़ों में बहुत चलते हैं, पर बात यह है कि एग्जीक्यूशन उस लेवल पे बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारी सोच की। तो लेकिन अगर गवर्नमेंट और हम लोग मिल करके कुछ करें तो इंदौर जो है वो अमृतसर भी बन सकता है। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, इंदौर बन सकता है। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर ये सभी चीज़ें हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, है ना। हमारी हेल्थ ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। तो अभी पता नहीं लगा कि, लेकिन ब्रिटिशर्स अपने साथ वेस्टर्नाइजेशन के साथ बहुत कुछ दे गए हमें। एल्यूमिनियम उस टाइम पे आया था कि एक स्लो पॉइजन है जो कि कैदियों को दिया जाता था, लेकिन ड्यूरेबल मटेरियल होने की वजह से हमारे किचन्स में कुकर्स की फॉर्म में, पतीलों की, कढ़ाइयों की फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा एंटर कर चुका है, और सबसे ज़्यादा गैस पे वही रहता है, और वो धीरे 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 हमारी बॉडीज़ में जाके बहुत नुकसान कर रहा है। नॉन स्टिक भी, तो ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ें हैं, ये बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से अब हम पर्यावरण के लिए जागरूक होते हैं, अपनी हेल्थ के लिए जागरूक होते हैं, तो हम ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में कोल्ड प्रेस्ड चीज़ें, कोल्ड प्रेस टेक्निक से बनी हुई चीज़ों को दोबारा से सर्च कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। साथ में मैंने यूटेंसिल्स के अंदर अब तो अपनी किचन में पूरा चेंज ले ही आया है अब, कि मैं कोई भी चीज़ जो है वो एल्यूमिनियम में नहीं बनाती हूँ। नॉन स्टिक भी मैं अगर कभी डोसा ही बनाना पड़ जाए तो उसके अलावा मुझे बनाना नहीं आता, वो भी मैं सीखूंगी कि मैं लोहे पे ही बना सकूँ, लेकिन मैं उसके अलावा नॉन स्टिक को नहीं यूज़ करती हूँ किचन में। मैं सारे ही यूटेंसिल्स आप देख सकते हैं, ये लोहे की कढ़ाई है, ये पीतल की कढ़ाई है, और ये पीतल का पतीला है, वो पीतल की हांडी है। दाल को हम खुला बनाते हैं, ऊपर से उसका फेन उतार के, जैसे पुराने लोग बनाते थे। ये मिट्टी का बर्तन है, बहुत इजीली चीज़ें बन जाती हैं। और अब तो नेट के थ्रू हमें इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्लीनिंग कैसे करनी है और उनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ किस तरह से इंटैक्ट रहती हैं। तो वो सब चीज़ों पे अब घर की स्त्री जो है, जो शक्ति है ना, उसे थोड़ा सा तो ये ध्यान देना ही पड़ेगा कि मॉनिटरिंग तो, अगर जॉब में भी हैं, सब काम भी करें, तो हम मॉनिटरिंग तो करनी ही पड़ेगी, वो रिसोर्सेज तो मैनेज करने ही पड़ेंगे कि जिससे हम अपने परिवार को बचा सकें। और हमें देख के शायद कोई सीखे तो बहुत अच्छा, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले हम अपने लिए ये चीज़ें ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਾयदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो सर अब मैं आरओ का पानी वैसे मैंने लगा हुआ है, मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। मैं कॉर्पोरेशन का पानी लेकर के ही ना मॉर्निंग में या रात में अपना मटका भर देती हूँ, तो पानी अल्कलाइन हो जाता है ना। हमारी बॉडी में पेट में एसिड्स होते हैं और हमारे लिए अल्कलाइन जो वाटर है ना, वो उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो अभी जो आरओ का सिस्टम है ना, उससे वो सब मिनरल्स, वो अल्कलाइनिटी पानी की खत्म हो रही है। तो हम मटकी को यूज करके अपने ये सब चीज़ों की डेफिशिएंसीज को दूर कर सकते हैं। इसी पानी को हम आटा गूंदने के लिए, सब्जियों के लिए, पीने के लिए बना सकते हैं। मैं अपना एक प्रोबायोटिक जिसको हम बोलते हैं आजकल ड्रिंक, वो भी आपको बहुत मिलेगा। नींबू पुदीना वगैरह डाल के हम लोग बना लेते हैं। ये भी मैंने इसी मिट्टी में बना के रखा है, तो आप 10-12 घंटे रख के इसको पी सकते हैं। तो ये हम अपनी फैमिली में थोड़ा सा चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें हेल्थ के लिए, जहाँ इतना आज जहर युक्त है धरती, पेस्टिसाइड्स वगैरह से सब चीज़ें लेस हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सा अपने ही घरों में इन चीज़ों के लिए करें कोशिश। ਮੈਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ बचत है वो कर सकें? सर मैं तो यही कहूँगी कि लेडीज़ जो है ना, नारी एक शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, जैसे कपड़े भी धोने हैं, हम मग का इस्तेमाल करें, सीधा टैप के नीचे चीज़ों को ना रखें। आजकल तो फ़ोन सबके हाथ में है। देखें कि हमारे पंजाब के ही बहुत से शहरों में पानी की बहुत किल्लत आ गई है। कई शहर तो ऐसे हैं जहाँ पे लोग कीचड़ से निकाल निकाल के पानी पी रहे हैं। तो हम उन चीज़ों को देखें, उसकी प्रायोरिटी को समझें, हम अपनी मेड्स को अवेयर करें, क्योंकि आज देखो सभी के घर में मेड्स हैं, उनको बोलें, अपने जो गाड़ी साफ करने वाले होते हैं उनको बोलें। हम बाहर किसी को जाके ना कहें, लेकिन हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, मतलब सिर्फ जितने हम लोगों से इंटैक्ट लोग हैं, एटलीस्ट उन लोगों को अवेयर करें। पर वो तभी हो सकता है जब एक स्त्री खुद को अवेयर करेगी। तो हम वही है कि पहले एक जो स्त्री है उसको खुद को जानना पड़ेगा, नारी को खुद ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लेडीज़ के हाथ में ही होती है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਚਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੋਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਨਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।